بہت ہی جو ہے نا میں کہوں گا کہ یہ بلنڈر ہے کہ صرف جذبات مجروح ہونے پر آپ 295 کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس میں جو ہے نا وہ جو اس میں ایک اور جو پہلو اجاگر کیا ہے کورٹ نے کہ جی اس میں کوئی بدنیتی جو میل آف آئی ڈی ہے وہ آن بہاف آف پروسیکیوشن نہیں ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں تو میل آف آئی ڈی ہی میل آف آئی ڈی ہے۔ ایک بندہ جو پہلے سے بھی 2-3 مقدمات درج کروا چکا ہے ایک بندے کے خلاف، اور وہ ایک اور مقدمہ درج کروا دیتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میل آف آئی ڈی نہیں ہے؟ یہ بالکل حقائق کے برعکس فیصلہ آیا ہے۔ میں حیران ہوں یہ کورٹ نے، عدالت نے یہ کس طرح کا فیصلہ جاری کیا ہے کہ جس میں حقائق ہی آپ نے جو کورٹ کا بنیادی جو مقصد ہے جس کو کورٹ نے وہ جج کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں جج کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو ایز پر جو ہے نا جیسے کہ ایف آئی آر ہے، آپ نے ایف آئی آر کو ہی اپنا آرڈر بنا دیا ہے کہ ایف آئی آر میں بھی تو یہی تھا کہ جی جذبات مجروح ہوئے ہیں تو ایف آئی آر لانچ کر دی گئی، اور اس کے بعد اب جذبات مجروح ہوئے ہیں تو آپ نے وہ بیل ڈسمس کر دی گئی۔ تو جذبات مجروح جو ہے نا وہ جذبات مجروح ہونے پر صرف 295 جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ جی السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی راولپنڈی سیشن کورٹ میں 15 نومبر کو اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ ڈسمس ہو چکی ہے۔ اب یہ جو دوبارہ سے سیشن کورٹ نے اس کو ڈسمس کیا ہے یہ کن گراؤنڈز پر کیا ہے، اور کیا اس میں کورٹ کا آرڈر ہے، جج نے کیا اس میں ججمنٹ دی ہے، کس بنا پہ اس کو خارج کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے، یہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ بھی اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا ہائی کورٹ سے اس ضمانت کی جو ہے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے، کیا ہائی کورٹ سے ضمانت کے کتنے چانسز ہیں منظور ہونے کے۔ اس کے علاوہ کیا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مزید ایک لمبے عرصے تک کے لیے جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے، یہ بھی ایک کویشچن ریز ہوتا ہے۔ تو ان سارے سوالات کا جواب جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں جامع انداز میں دوں گا کہ مختصر الفاظ میں آپ کو میسج اور بات جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے۔ اچھا، یہ جو 15 نومبر کو ابھی ریسنٹلی جو بیل دوبارہ ڈسمس ہوئی ہے، اس میں جو کورٹ نے راولپنڈی سیشن کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے کس بنا پر کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے، کس گراؤنڈ پر بیل کو خارج کیا ہے، اور کیوں ہمیں انجینئر صاحب کو اس میں ریلیف کیوں نہیں دیا۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس بیان کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں شدید جو ہے وہ جذبات جو ہے متاثر ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ اس میں پروسیکیوشن جو ہے نا اس مرحلے پر پروسیکیوشن مدعی کی طرف سے کوئی ایسی بدنیتی یا کوئی ایسا خفیہ محرک جو ہے نا وہ نہیں پایا گیا جو اس بات کے لیے کافی ہو، اس ریلیف کے لیے کہ انجینئر صاحب کو ضمانت جو ہے وہ ضمانت جیسی رعایت دی جا سکے۔ تو ایٹ دا اینڈ عدالت نے کہا ہے کہ جی تمام بحث و مباحثہ اور تمام دستیاب ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر بیل دی جا سکے، تو لہٰذا کنسیکوینٹلی بیل جو ہے وہ ڈسمس کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی آرڈر۔ اب اس کا میں بتاؤں کہ ہائی کورٹ نے جو سیشن کورٹ کو دوبارہ سے آرڈر اس میں پاس کرنے کا کہا ضمانت کے حوالے سے، وہ کیوں کہا؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ واپس سیشن کورٹ کو ریفر کیا ہو کوئی معاملہ ہائی کورٹ نے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اس میں ایک بہت بڑا میں آپ کو سیکرٹ اس میں بتاؤں کہ یہ کیس کیونکہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں جو سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ہی خلاف جو ہے نا وہ قانون ہے، کرین انصاف تو بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کا بھی جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کا بھی یہی مطلب تھا کہ سیشن کورٹ اس کیس کو دوبارہ سے دیکھے اور اس میں دیکھے کہ جو انجینئر صاحب کی جو ویڈیو بیان ہے اس میں کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا اور ان کی انٹینشن کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا ڈیسائیڈ کرے اس کو، کیونکہ انجینئر صاحب نے خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے گستاخانہ الفاظ کا استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر یا ان کی سیرت پر کوئی حملہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک فرقے کے عقیدے کے بارے میں ایک وضاحت پیش کی تھی، وہ بھی ایک جو کہ وہ ایک اسلامک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اسلامک لیکچرز دیتے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک یہ ایک معمول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ایک خاص کوئی بندہ جو ہے اٹھا ہے اس کا کوئی وہ اسلامک بیک گراؤنڈ نہ ہو لیکن وہ اس طرح کی بات کر دے تو اس پہ تو آپ شک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا کورٹ نے، سیشن کورٹ نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا، اور پھر سے جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ کہا ہے جی جذبات مجروح ہو گئے۔ اب اس کے باوجود جو ہے نا سیشن کورٹ نے اس فیصلے میں صرف
जज्बात मजरूह होने को बुनियाद बनाते हुए बेल को खारिज किया है। इसमें भी उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा, उन्होंने इंटेंशन को जो है सामने नहीं रखते हुए फैसला किया, जो कि एक मैं कहता हूं कि गैर मुनसिफाना फैसला है। और देखा जाए तो सिर्फ जज्बात का मजरूह होना 295C को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने इंटेंशन देखनी है उस बंदे की। जाहिरी तौर पर हो सकता है कि किसी के जज्बात मजरूह हैं, उसको गलत समझ लगी हो, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एक बंदे ने वो बात उस तनाजुर में की ही ना हो, तो उसने तो तौहीन का वो मुर्तकिब नहीं ना हुआ। तो तौहीन का तो मुर्तकिब वही होगा जो उसको तौहीन की नीयत से कोई बात करेगा। लेकिन उसमें वजाहत एक एक्सप्लेनेशन थी कि मुसलमानों को एक उन्होंने एक ये एक्सप्लेनेशन दी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मखसूस जो फिरका है वो इस तरह के अकायद रखता है। अच्छा, ये जो बेल डिसमिस की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, वो 2 ग्राउंड पर की गई है। उसमें ये जो है ना मौकफ लिया गया है कि जी मुसलमानों के जज्बात जो है वो शदीद मजरूह हुए हैं, जबकि 295C अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ जज्बात का मजरूह होना काफी नहीं होता। आपको ये देखना चाहिए कि जिस बंदे ने कोई बात की है वो किस पर्सपेक्टिव में की है, किस तनाजुर में की है, उसकी इंटेंशन क्या थी। तो वो बंदा बात किसी और मकसद के लिए कर रहा है, किसी और इंटेंशन से कर रहा है आपको अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन आपका जो सोच है या आपका जहन है वो उसको किसी और तरह से पिक कर रहा है, या आपको वो किसी और तरह से समझ लगी है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इसलिए आपके जज्बात अगर मजरूह हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके जज्बात अगर मजरूह हो गए तो उसने 295C जो है वो कर दी है, उसने तौहीन कर दी है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें ये बहुत ही जो है ना, मैं कहूंगा कि ये ब्लंडर है कि सिर्फ जज्बात मजरूह होने पर आप 295C का फैसला कर रहे हैं। और दूसरा इसमें जो है ना वो जो इसमें एक और जो पहलू उजागर किया है कोर्ट ने कि जी इसमें कोई बदनीयती जो मेलाफाइडी है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है, जबकि मैं कहता हूं कि इसमें तो मेलाफाइडी ही मेलाफाइडी है। एक बंदा जो पहले से भी 2-3 मुकदमात दर्ज करवा चुका है एक बंदे के खिलाफ, और वो एक और मुकदमा दर्ज करवा देता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेलाफाइडी नहीं है। ये बिल्कुल हकाइक के बरक्स फैसला आया है। मैं हैरान हूं, ये कोर्ट ने, अदालत ने ये किस तरह का फैसला जारी किया है कि जिसमें हकाइक ही आपने जो कोर्ट का बुनियादी जो मकसद है जिसको कोर्ट ने वो जज करना होता है वो आपने उसमें जज किया ही नहीं है। आपने तो एज पर जो है ना, जैसे कि FIR है, आपने FIR को ही अपना ऑर्डर बना दिया है कि FIR में भी तो यही था कि जी जज्बात मजरूह हुए हैं तो FIR लॉन्च कर दी गई, और उसके बाद अब जज्बात मजरूह हुए हैं तो आपने वो बेल डिसमिस कर दी गई। तो जज्बात मजरूह जो है ना, वो जज्बात मजरूह होने पर सिर्फ 295C जो है वो लागू नहीं होती। और दूसरा इसमें इस केस में जो है आप कह रहे हैं कि कोई बदनीयती जो है ना वो नहीं है, कोई खुफिया जो मुहर्रक है वो नहीं है, जबकि इसमें खुफिया मुहर्रक ही है। एक बंदा जो पीछे पड़ा हुआ है, एक बंदे के उसकी जो है ना वो असैसिनेशन तक जो है ना वो लोग जा चुके हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो कैसे उसके पीछे खुफिया मुहर्रक नहीं है। ये समझ से बालातर बातें हैं। और मुझे ये बताएं कि जिसने पहले से भी FIR करा दी हुई है एक बंदे पे, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बदनीयत नहीं है। वो तो एक खुला दुश्मन है, वो तो उसका जो है आपको नजर आना चाहिए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही अगेंस्ट द फैक्ट्स जो है ना ये डिसीजन है, और ये बेल डिसमिस करना इसमें जो है नहीं बनता था अगर इस केस को जो है ना वो मुनसिफाना तरीके से जो है देखा जाता और इसका फैसला किया जाता। और इस हवाले से वफाकी शरई अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने भी इस बारे में शदीद खतरात का जो है वो इजहार किया हुआ है कि 295C को लेके जो है ना ये बहुत ज्यादा खतरात हैं कि लोगों पर ये जो है इल्जाम लगा दिया जाता है और फिर वो सालों सालों जो है ना वो जेलों में सड़ रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह के केसेस का जो फैसला है वो इंतहाई बारीक बीनी से और मुनसिफाना तरीके से करना चाहिए। और यहां पर मैं कहता हूं कि एक बंदा जो शान नबी का मुकदमा लड़ रहा है, जो शान नबी बयान करता है, अपनी हर बात का खुलासा ये कहता है कि मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो सबसे आला है, तो आप उसी बंदे पर तौहीन का इल्जाम लगाकर कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, कितना बड़ा बोहतान लगा रहे हैं। आप क़यामत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, आप किस तरह इसको जस्टिफाई कर सकेंगे। ये आपका जो बुग़्ज़ है, अदावत है, वो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसकी, और आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आप किस कदर जो है वो जालिम जो है ना बनते जा रहे हैं और आप किस कदर जुल्म ढा रहे हैं। एक बंदा जो 83 दिन से जेल में बेगुनाही की सजा काट रहा है, उसका एक एक दिन का हिसाब आप कैसे देंगे। अच्छा, तो इसमें अब नेक्स्ट जो है मैं आपके सामने ये बयान करता हूं कि अब ये तो कोर्ट का जो है सेशन कोर्ट का दोबारा से एक फैसला आ गया, उसमें भी उसने इस बेल को डिसमिस ही किया है, कोई अलाउ नहीं किया, और मैं कहूंगा कि अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द फैक्ट्स जो है ये डिसीजन जो है पास हुआ है। अच्छा, तो इसमें अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट से
बेल होने के कितने चांसेस हैं हाई कोर्ट से, क्या हाई कोर्ट रावलपिंडी हाई कोर्ट के, क्योंकि रावलपिंडी हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो हमने बेल फाइल की हुई थी वो इसी तरह जो है वो बरकरार है, उसमें जो है ना अब ये दोबारा से सुनवाई होगी, समाअत होगी और बेल के हवाले से जो है वो फैसला होगा। अब वहां से इंजीनियर मिर्जा साहब के हक में फैसला आने के कितने चांसेस हैं, क्या हाई कोर्ट जो है वो जमानत मंजूर करेगी। अब इसमें मैं आपको कह सकता हूं कि इस तरह के जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं ना 295C जैसे, इस तरह के हीनियस ऑफेंसेस में सेशन कोर्ट से मुलजिम को रिलीफ जो है ना वो कभी नहीं मिलता। तो इसी तरह से उसी ट्रेंड पर चलते हुए ऑर्डर जो है ना वो पास हुए, पहले भी बेल खारिज हुई थी, दोबारा से भी बेल खारिज कर दी गई। हालांकि ये केस बिल्कुल ही बेसलेस था, इसको सेशन कोर्ट से ही डिसाइड हो जाना था, मुंसिफाना तरीके से जो है ना बेल हो जानी थी, तो हाई कोर्ट तक जाने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इसको दोबारा से जो है ना सेशन कोर्ट को भेजा, लेकिन सेशन कोर्ट ने उसको अपने आप पर हावी करते हुए कि 295C है उसको हकाइक को ना देखते हुए और कानून के मुताबिक जो है ना वो फैसला ना करते हुए सिर्फ उसी FIR के जो मतन है उसमें जी जज्बात मजरू और इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी का जो वो है, इस तरह का वो जो तासुर है, उसी चीज को जो है बरकरार रखते हुए वो डिसीजन कर दिया गया। तो बात यह है कि हाई कोर्ट से बेल होने के चांसेस जो है ना वो 50% से ज्यादा है। मैं एहतियातन आपसे कह रहा हूं 50% से ज्यादा है, ज्यादा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से इंशाल्लाह जमानत हो सकती है। तो इस केस में ये ओपन शट केस है, इसमें यकीन जाने बिल्कुल ही बेसलेस केस है, इसमें FIR तक लॉज होना नहीं बनती थी। अब ये कोर्ट का काम होता है कि अगर कोई केस गलत दर्ज हुआ है, खिलाफ कानून हुआ है, या उसमें वो जुर्म जो लगाया गया है वो नहीं बनता, ये अदालत ने उसको जो है ना वो उसकी जजमेंट करनी होती है, अदालत ने उसकी जो है तशरीह करनी होती है, अदालत का ही ये काम होता है। अदालत का काम ये नहीं होता कि एज पर FIR ही आप उसको जो है ना वो चला दें और आप कुर्सी पर किस काम के लिए बैठे हुए हैं, आप क्या सिर्फ इसी चीज को जो है नरेट करने के लिए बैठे हैं जी। FIR में जिस तरह लिखा हुआ है जी जज्बात मजरू हुए हैं, तो आपने भी वो फैसले में लिख दिया जज्बात मजरू हुए हैं, तो आपने तो कंक्लूड ये करना था कि उसमें आया कि जो इल्जाम लगाया गया है क्या वो उस बंदे ने किया है या नहीं किया, आया कि उसकी ये इंटेंशन थी या नहीं थी, और जो बंदा FIR करवाने वाला है, जो मुद्दई है, क्या उसकी मेलाफाइडी है या नहीं है। तो ये चीजें अगर आप देखते तो आपके सामने ये सारा ओपन शट था, बल्कि आपको सामने, हालांकि कोर्ट को भी सब पता ही होना, लेकिन सेशन कोर्ट से इस तरह के रिलीफ जो है ना वो नहीं मिलते। इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट जो है ना वो एक आला और मुंसिफाना जो है ना वो कोर्ट है, और उसमें जो है बड़े फैसले होते हैं, बड़ी कोर्ट है, तो वही जो है ना इस केस का एक मुंसिफाना फैसला करेगी। और इंशाल्लाह इंजीनियर साहब जो है देखें कितने दिन जेल में रहते हैं, कब तक रहते हैं, ये एक अलग पहलू है, ठीक है। उनका जेल में रहना एक अलग चीज है, वो हो सकता है उनके लिए इसमें अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी हो, तो लेकिन एक दिन उनको बाहर आना है, उनकी जमानत होनी है इंशाल्लाह, और इसमें जो है वो बरी भी होंगे। तो ये जो है एक ओपन शट केस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके तहत उनको सजा दी जा सके। तो कानून तो यही कहता है, हमारा इस्लामी कानून भी ये कहता है, हमारा जो पाकिस्तानी कानून है उसके मुताबिक भी ये जो है उनको इस तरह जो है सजा नहीं इसमें दी जा सकती। तो दोस्तों मजीद अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और किसी भी बारे में आपको कोई क्वेश्चन आपका है तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह हमारा काम, हमारा मकसद जो है ना वो ये है कि इंसाफ हो और किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना हो और हक पर मबनी फैसला हो। तो दोस्तों इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।